एक तरफ हम अगर आर्टिकल 89 का टेक्स्ट देखें, जिसके, और वो इसलिए मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस भी आई है जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो भी उसकी भी कंडीशंस मौजूद नहीं थी और आईनी तरीके से वो भी नहीं आई है। लेकिन उसका भी टेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका आर्टिकल 89 का जो सब क्लॉज 2 है वो कहता है कि an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of parliament and shall be subject to like restrictions as the power of parliament to make law. ये तो वाजे करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ही कि पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं, और वही रिस्ट्रिक्शंस जब आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे होंगे तो उस पे भी लागू होंगी। तो एक तरफ आपका आइन इस बात की खुद तस्लीम कर रहा है कि देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्लियामेंट्स लॉ मेकिंग पावर and the same apply to the president when he's passing an ordinance, और दूसरी तरफ आपके पास एक conflicting 239 5 and 6 आपके पास आता है। So it's very interesting for me to see के how this is allowed to continue and why this hasn't been challenged. Moiz, would you like to come in on this? I think Nida, pehle to ek distinction, we have to make a distinction that there are two kinds of restrictions on the parliament's powers. There are restrictions on the parliament's powers to legislate, because every legislation has to be consistent with the constitution, and I think इस हवाले से तो कोई debate या disagreement नहीं है। एक दूसरा पार्लियामेंट के पास पावर है to amend the constitution. Now, Article 239 that Hassan referred to, it only speaks about amendments to the constitution. Now, उस हवाले से भी हमने अब देखा है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूसिवली इस सवाल का भी जवाब दिया। लेकिन जैसे आपने कहा कि फिर सवाल पैदा होते हैं कि जब ये 239 क्लियरली स्टिपुलेट करता है कि an amendment should not be questioned, then how can 17 unelected individuals then locate or find a basic structure in the constitution and then create fetters on the parliament's right to amend the constitution? अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये एक स्ट्रॉमैन आइडिया है कि अगर इस तरह हुआ तो जजेस ने कभी पाकिस्तान की आइन को अमेंड करने ही नहीं देना पार्लियामेंट को। हमने देखा है कि 40 सालों के अंदर देयर हैव बीन 25 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन and no amendment has been struck down by the Supreme Court. So this idea that any fetters on the parliament's powers will completely obviate the parliament's power to amend the constitution, this is not consistent with the facts. This has never happened in the past. लेकिन क्या अब पार्लियामेंट को एक मुकम्मल ये इख्तियार दे दिया जाए कि जिस आइन के तहत आप पार्लियामेंट वजूद में आया है आप उस आइन को ही तब्दील कर दें, यानी आप इलेक्ट होने के बाद कहें कि हम 10 साल तक कोई इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, बुनियादी तौर और जो लोगों के बुनियादी हुकूक हैं उनको भी सल्व कर लेंगे। तो इस तरह के इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह रिदा ने भी कहा था, the preamble to the constitution says that it is the people who have come together and enacted this constitution, and it is the people's desire to have an order to govern their affairs. So as a result, it is the people who must come before the constitution and before every other institution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन सबसे पहले लोग आते हैं, उसके बाद आइन आती है, उसके बाद जुडिशरी और पार्लियामान आता है। और जहां तक इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का ताल्लुक है, सो ये डिबेट दुनिया भर में है। हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ व्यू कॉल्ड डिपार्टमेंटलिज्म, that every institution has the right to interpret the constitution in any manner that they deem appropriate. Ultimately, in any dispensation which has a written and a codified constitution, it is the Supreme Court which is the final arbiter of the law. Now, as I said, there are throughout the world. In America, for example, हम देखते हैं कि बहुत सारे contentious issues पे, चाहे वो abortion हो, चाहे same sex marriage हो, चाहे और कवानीन हो, लोग डिबेट करते हैं, डिसएग्री करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से, बट द सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली, एंड देयर आर आल्सो पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल. There are constituencies that the Supreme Court also appeals to, and there are opportunities, there are chances where the court also revisits its own prior decisions. हमने हाल ही में देखा कि समीउल्लाह बलोच केस में, फॉर एग्जांपल 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंशन नहीं करता कि एक डिस्क्वालिफिकेशन कितने साल की है, लिहाजा द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट साइलेंस इन आर्टिकल 62 टू मीन दैट अ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दैट आर्टिकल वुड लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम. But nonetheless, there were critiques of that interpretation, and as a result, in 2024, we saw the Supreme Court revisit its own earlier opinion. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, वो हमारी जो इंटरप्रिटेशन थी वो आइन से मुतसादिम थी, और आज हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि आर्टिकल 62 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ टाइम लास्ट नहीं करेगी.
तो एक तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन चेंज करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर चांसेस दैट a Supreme Court's judgment, the effect of that judgment can be nullified by changing the basis of that judgment. आप आइन को भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आइन को क्या आप इस तरह तब्दील कर सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को सल्व कर दें? आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, दीज इंस्टीट्यूशंस इंश्योर आवर फ्रीडम. सो अगर पार्लियामेंट ये कहता है कि हम जजेस किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर को रीड इन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आई थिंक एक और बुनियादी सवाल ये है कि पार्लियामेंट ऐसी अमेंडमेंट्स क्यों करना चाहेगा जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से इनकंसिस्टेंट हो? पार्लियामेंट ऐसी अमेंडमेंट्स क्यों करना चाहेगा जो बुनियादी आईनी हुकूक से इनकंसिस्टेंट हो? सो एज अ रिजल्ट देयर इज also a degree of trust that the constitution reposes in all these institutions. So the constitution assumes that the judiciary would not encroach on the parliament space, and the constitution also assumes or reposes in the parliament that the parliament will stay true to the mandate which given to it. हमने देखा अभी recent only survive when there's a degree of forbearance. So without these values, without institutional forbearance, without mutual toleration, a constitution cannot survive in any event. So I think ये एक बात है कि गो के हमारी जो है फाइनल आर्बिटर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉनदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन presupposes or assumes that all institutions, चाहे वो पार्लियामान हो या वो अदलिया हो, वो एक डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशनल फोरबेरेंस डिस्प्ले करेंगी और दूसरे की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं करेंगी. आज जो हम आइन देखते हैं, हसन ने बात की लेजिटिमेसी की, हमने अभी देखा कि आर preamble says that it is the people who come before the constitution, before any institution. Nonetheless, this amendment completely excludes the people from this process. आज जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वही इस पूरे प्रोसेस से आप उनको एक्सक्लूड कर दिया कि आज मुझे और आपको पता नहीं है कि ऑफिशियल टेक्स्ट है क्या अमेंडमेंट का. हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो व्हाट द ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज. दूसरी बात, वो पार्लियामेंट जो कि आज इसको डेलिब्रेट कर रही है इस अमेंडमेंट को, उस पार्लियामेंट की अपनी लेजिटिमेसी भी क्वेश्चन में है. So as a result, there's a severe legitimacy crisis that surrounds this amendment. And I think when we talk about interpretation of the law, when we talk about notions like parliamentary sovereignty, we cannot lose sight of the facts which underpin this amendment as well.